So welcome to Speak Up Q&A. I request all of you to please do connect. I've shared the link. Please come and speak up on the topic that is related to you, because here we are talking about poetic justice in Sushant Singh Rajput case. After a long time, it is clearly showing that this industry is struggling is because this industry ignored you, it ignored Sushant Singh Rajput, and now everyone from North India to South India is ready to ignore Bollywood. From people to politician, from politician to actors, everyone is willing to ignore Bollywood. And why? Because Bollywood is not giving them profit. And that's the reason why I'm here. I request all of you to please come and speak up. We will be talking about this session for about 45 minutes or half an hour, depending on how many people come. Your coming is important, because if you come and speak, then it makes sense to do Speak Up Q&A. I have been avoiding doing Q&A because there are not too many people there to come and speak. I hope today people will come and speak, and we shall start Q&A session all over again. The reality is that Ajay Devgan has sent out a tweet declaring Hindi as national language, और उनके इस ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया, और उनके खिलाफ खड़े होने वाले लोग ज्यादा हो गए, उनके फेवर में खड़े होने वाला लोग कोई भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. Yes, Manny, please go ahead. Yes, sir. Sir, good evening. So basically, I just want to, kind of take back to a video where Sushant Singh Rajput had said that, Bollywood will collapse one day if they don't change the way they are operating. Yes. And, we all are waiting for justice for Sushant Singh Rajput, but I always say and I always believe that poetic justice is going to carry on. As far as politics and authorities and all are concerned, I don't know when legally the justice will take place, but justice keeps happening in its own way. Now today, the other day we were having this discussion about, whether boycott Bollywood is working, it's not working and things like that. Recently, you must have read the news where Karan Johar has tied up with Amazon Prime and is releasing 3 of his movies, and so is ये सब OTT स्टार हो गया. अब इनको OTT स्टार्स बोलना चाहिए. ये लोग अब फिल्म में स्टार्स नहीं है, लोग OTT स्टार्स. Exactly. So all that drama that I always say, that these people have just bought media, and these media people keep, pushing up the numbers and, showing that these movies have done so well, whether it's Gangubai or some other. All this is false. अगर इतनी मूवीज चल रही होती तो उनको सारी मूवीज OTT पे रिलीज करने की क्या जरूरत थी? Right. कोई जरूरत नहीं थी. They are all faking news. They are all faking numbers like they've always done. And we keep believing in whatever is written. ये इनको इतना स्टार मिला है, Netflix वालों ने IMDb है, everybody is bought. I told you, sir, that I go and check on the PVR, movie के theaters होते ही नहीं हैं, भरते नहीं हैं seats. और ये South Indians आज बड़ा बोलने लगे हुए हैं. They think that suddenly they become great actors. No. ये वक्त की बात है. ये मैंने क्या होता नहीं, वक्त की बात है. Yes. जब किसी चीज का, जब कोई सितारा चढ़ता है ना, जो दिखता है वही बिकता है. तो ये मौका इनका है. 80 साल तक इन्होंने दादागिरी की है. अब अगर कोई और दादागिरी कर रहा है तो ठीक है ना, करने दो उसको थोड़े दिन. सर दादागिरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू पॉइंट आउट हियर दैट साउथ इंडियन सिनेमा सडनली थिंक्स दे बिकम द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द होल कंट्री. नो. That may be factually, you may be correct, but I think there's nothing wrong with it. No, there is. I understand what you're saying. Just like सारे ग्रेट जीनियस थे क्या? एवरेज लोगों ने इस इंडस्ट्री को इतने दिन से डोमिनेट कर लिया. अब अगर साउथ इंडिया के लोग हम ओरिजिनल फिल्म तो बना रहे हैं, वो भले ही राजा मौली के कारण बनाए, जस्टिस के कारण बनाए, लेकिन बना रहे ना, तो फिर प्रभास को शेयर होने दो. भाई कितने फिल्में कर ली अपने क्या नाम है, कमला हसन ने, कितने फिल्में रजनीकांत ने कर ली. उनको तो फिल्म ही नहीं देते थे लोग. सेकंड, थर्ड रोल, फोर्थ रोल देते थे. क्यों भाई, उनको एक्टिंग नहीं आती क्या? आप ही को एक्टिंग आती थी. So sir, I totally agree with you that सबका अपना दिन होता है, but one should understand that when Sushant Singh Rajput died, what happened to him?
how circumstances were created as far as Bollywood is concerned, and how they kind of put him in this web where they were mentally, breaking him down by taking away his movies, by bullying him, by telling him to work in a certain way which he didn't want to follow. And ultimately all these 5-6 actors and these 5-6 प्रोडक्शन हाउसेस जो अपने आप को ज़्यादा ही हीरो समझते थे, उनका क्या हाल हुआ, क्या हो रहा है उनका हाल? वो तो अक्षय कुमार की साउथ इंडियन कितनी फिल्म में मूवीज इन्वेस्ट कर रिलीज रहे हो हैं, चुकी हैं? वो सब साउथ इंडियन फिल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार की कितनी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं? सब फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप। अभी आमिर खान अपनी मूवी लेके आ रहे हैं, सब डर डर के लेके आ रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ट्विटर पे सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, दे आर स्केर्ड ऑफ रिलीजिंग देयर मूवीज। अरे भाई ये लोग गिव अप। कैसे स्केर्ड नहीं होंगे मैनी, ये सब ओटीटी स्टार हो गए हैं, इनकी फिल्में ओटीटी पे चलती हैं, पब्लिक फ्री में देखेगी इनकी फिल्म, पब्लिक सर इनकी फिल्म ओटीटी के लिए पे भी पैसे खर्च नहीं चलती करेगी। है, ओटीटी पे भी चलती है, नहीं चलती है, हाँ ये जरूर है, उनको रिलीज कर देते हैं, उनको कुछ पैसे मिलते हैं। ओटीटी पे किसी ने देखी नहीं देखी पता थोड़ी चलता हाँ एग्जैक्टली। है ना? तो ठीक है, ओटीटी पे ही स्टार बने रहेंगे, ओटीटी पे बैठने दो इनको। स्टार सर, ओटीटी पे आप स्टार नहीं बनते हो, ओटीटी पे एक्टर बनते हो। अगर आपकी अच्छी एक्टिंग होगी इस वेब सीरीज में चलेगी, अगर आप उधर जाके डांस करोगे 24-22 ईयर ओल्ड गर्ल्स के साथ, तो आपकी मूवी नहीं चलने वाली। तो वो यानी टाइम निकल गया है। आप मैंने ये कह रहा हूँ कि अब इनका स्टारडम भी जाने वाला है, राइट? चला गया है, चला जाने गया वाला है, नहीं है, इट्स गॉन। In last 2 years from 2020 they are no longer stars, they have इन्होंने to be हमारे शो को actors. नहीं देखते, ये हमारे शो को नहीं देखते, हमारे प्लेटफॉर्म के लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमने कहा था 55 की का रांझा और 20 की हीर नहीं चलेगी, इनको समझ में नहीं आई बात। 1 साल पहले कहा था कि भाई 55 का रांझा और 20 की हीर का जो कहानी आप सुना रहे हो ना, ये नहीं चलेगा। अभी भी ये लगे हुए वहीं तापसी पन्नू और वो क्या पूजा हेगड़े और इनको रकुल प्रीत सिंह। अरे भैया एज तो देखो, चाचा जी हो यार, चाचा जी वाला काम करो ना। नहीं सर, the thing is that whether they are grandfathers or they are chachajis or tayajis, it doesn't really matter. The whole point is age appropriate, you should yes do films age appropriate ना sir. Not only that, look at these heroines, वो भी साथ में लगी हुई हैं। भैया अब तो टाइम है, you can refuse movies with such senior actors. how can they refuse? Why they will not? not get work. Why will they not get work? सब साउथ No, इंडियन they में will तो not. है ये सब। कैसे रकुल इनको प्रीत, कौन सी फिल्म मिलेगी? मना कर दिया तो किसको मिल रही है? अरे भाई रकुल जो इनको मना करेगा मैनी, उसको इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे। अभी भी इनका इनका अभी भी उतरा नहीं है फितूर। आप समझ नहीं रहे हो। रकुल प्रीत साउथ इंडियन मूवीज में आती है, उसको नॉर्थ इंडियन मूवीज में लिया किसने था? अब नॉर्थ इंडियन मूवीज में आ रही है वो। फिर आपकी पूजा हेगड़े, she started with Hrithik Roshan in that movie Mahendra. It was a big flop. She went down to south. She's also Telugu film actor. हाँ exactly. और कौन है अभी? रशिका, Ileana D'Cruz also, Taapsee Pannu also. हाँ, all of them have started from South Yes, India yes, only, ना? yes. Right, so that's what I'm saying. वो अगर ना भी कर देंगे तो उनको साउथ इंडियन मूवीज तो मिल ही रही है ना। बताता हूँ ना अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था, साउथ इंडियन फिल्म को एक बेस बनाया था और वहां से आते थे बॉलीवुड में। क्यों? साउथ इंडियन फिल्में तो अच्छी देते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं थे। पैसे सिनेमा, हिंदी सिनेमा देती थी। अब भैया फिल्म ही नहीं चल रही तो वो पैसे भी नहीं देंगे। एग्जैक्टली। पहले बजट बनाते थे 300 करोड़ की फिल्म, अब वो जो नया ट्रेंड आया है, इनकी फिल्मों के बजट है 25 करोड़। सर नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। आपने 25 करोड़ की मूवी 300 करोड़ में सेल करी, दिस इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे वर अर्निंग। अब क्या उन्होंने स्टैंडर्ड लो कर दिए हैं? अब ये रॉकी वर्सेस रानी पता नहीं क्या मूवी आ रही है, 83 जो है ना, धर्मा प्रोडक्शंस, 83 जो आई ना रणवीर सिंह की, वो 300 करोड़ की फिल्म थी। हाँ सपोजिटली नहीं, मैं बता, तभी तो लॉस हुआ है, तभी तो फ्लॉप है। सपोजिटली हो जाता तब तो करेंगे तो फ्लॉप बोल देंगे लोग। भाई बोल दिया ना 300 करोड़, हमने 300 करोड़ लगा दिए, अर्निंग हुई 196 करोड़, वो फ्लॉप हो गई फिल्म, है ना? क्यों? क्योंकि 300 करोड़ में बनाई। अब ये फिल्म कैसे बना रहे हैं? आपको लगता है 196 15 करोड़ में फिल्म बना रहे हैं? 15 करोड़ में बनाओ, ओटीटी पे 30 करोड़ में बेच दो, 15 करोड़ लेके घर में बैठ जाओ, अपना चिनिया बादाम खाते रहो। आपको लगता है 196 करोड़ 83 ने कमाया है? आप मान लो ना, फ्लॉप है ना, मान लेते ना हम। मैं तो बोलती हूँ उसने 96 लाख भी नहीं कमाए होंगे। ट्रस्ट मैं कह रहा हूँ जीरो। अरे भाई जीरो कमाए हो,
फ्लॉप हो गई ना, मेरे लिए तो फ्लॉप वर्ड इंपॉर्टेंट है। yes, मेरे को इसमें yes. पढ़ना ही नहीं हो कितना कमाया नहीं हाँ, कमाया। तो ऐसे बोलो ना फ्लॉप हो गई बस। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिट हो गई। आपने 196 करोड़ बोला है, हाँ उतना भाई, तो 190 एक छचोरे मिनट, छचोरे। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 196 करोड़ हो गया। फिल्म बनी 300 करोड़ में, प्रोड्यूसर के जो 100 करोड़ लुट गए, है ना। अब वो प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है, भैया मैं तौबा कर लिया, 300 करोड़ की फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं 15 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा, 30 करोड़ में ओटीटी पे बेचूंगा और 15 करोड़ लेके अपने घर चला जाऊंगा। जिसको खाना पीना है वो अपने खुद से लाए और खुद खाए, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा अपने लिए। अभी Right. उसने सेट कर लिया अपना, हमारा वाला लाइफ जिएगा। एनुअल पैकेज कितना, 15 करोड़ का एनुअल पैकेज, 15 करोड़ में सारे को पेमेंट करना है, 15 करोड़ से ज्यादा का एनुअल पैकेज नहीं है। अब ये Yes. लोग वर्कर बन गए, ओटीटी के वर्कर। Yes. So I agree with you that now, so that's every time we used to have this argument about boycott Bollywood, और आप कहते थे ये मूवी हिट हो रही है, वो मूवी हिट हो गई है, तो मैंने आपको बोला था आप देखते रहना, आगे आगे कहाँ पे रिलीज करेंगे ये मूवीज, आपको बता देगा कितनी हिट हुई है कितनी फ्लॉप हुई है। आगे ना सारे ओटीटी पे, सारे आ गए हैं ओटीटी पे, because they were having flops. अच्छा एक मिनट, they were spreading wrong news. ओटीटी कहानी भी सुन लीजिए। ये जो इन्होंने किया ना सुशांत के साथ, सारा लौट के आ रहा है इनको, Yes, सारा। yes, इन्होंने yes. सुशांत की एक फिल्म धक्के मार के ओटीटी पे रिलीज करवाई। वो बोलता रहा कि मेरी ड्राइव मत रिलीज करो ओटीटी, मुझे थिएट्रिकल रिलीज चाहिए। नहीं, तुम्हारी फिल्म तो उस पर आज सब की फिल्में ओटीटी पे चल रही Yes. है ना। And especially Karan Johar, especially Karan Johar. ठीक है, ओके। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम हैं जो डिसाइड करेंगे कि गेटकीपर हैं कि कौन बड़ा एक्टर बनेगा, कौन छोटा एक्टर बनेगा। तो आज का जो एपिसोड है ये बताता है कि वो एक्टर कौन बनेगा और कौन बड़ा कौन छोटा, वो साउथ इंडिया डिसाइड करेगा। अब आप वो भी नहीं डिसाइड कर सकते, आपके पास एक्टर ही नहीं आएंगे, सब साउथ इंडियन चले जाएंगे। ये भोजपुरी साउथ इंडिया बहुत ग्रेट फिल्म बनाया हुआ है यार। भोजपुरी फिल्मों को इन्वेस्टमेंट नहीं देने देते ये। मैं मिला किसी प्रोड्यूसर से, सब रीजनल बनाएंगे कैसे, हमको सब तो रीजनल के साथ ऐसे ही होता है, हमको कैमरा नहीं देते ये लोग। तो सर सब रीजनल मूवीज के साथ ऐसा ही होता है, वो और रीजनल मूवीज को बनने नहीं देते हैं। Now, because of the content of OTT, web series and all, it's not they have to go to South India. No, it has opened up doors for so many young actors, inspiring actors, जिनको break ही नहीं मिलती थी। तो एक मिनट, अब OTT That is the whole thing has changed. Let's discuss OTT, है ना। Let's discuss OTT. OTT पे किसको फिल्में मिलेगी? मनोज बाजपेयी को मिलेगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलेगी, जिसको एक्टिंग आता है। अब इन्होंने कब एक्टिंग किया? बॉलीवुड के जो बड़े 6 लोग हैं, इन्होंने एक्टिंग कब किया मुझे बताइए। इनको 6 लोग में से 6 को, इन जो बड़े नाम हैं, इनको फिल्म फेयर छोड़ के कितने को नेशनल अवार्ड मिला है? टेल मी, हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉट नेशनल अवार्ड? इनको ओटीटी पे क्यों लेगा कोई शो में? एक्टिंग आती नहीं। आप एक्टिंग की बात कर रहे हो, इनकी एज ही चली गई है। अब बूढ़े लोगों को यंगस्टर्स आके देखेंगे। मैं बॉलीवुड के सारे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ, अब सब एक्टर्स, देयर आर सम गुड एक्टर्स, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट, जो है वो है। वो तो मैं कह रहा हूँ मनोज बाजपेयी अच्छे एक्टर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ गुड एक्टर, सर इवन बियॉन्ड दैट इज अ गुड एक्टर, even Hrithik Roshan is a good actor, ऋतिक रोशन इज अ गुड एक्टर, अजय, इवन अभिषेक बच्चन इज अ गुड एक्टर। उसको फिल्म नहीं देते, उनको नहीं लेनी थी ना, हमने उस पे भी शो किया था। उन्होंने साइडलाइन करके रख दिया यार। हमने उनको भी तो शो किया था। रिमेंबर वी हैड सेड कि जो अभी 40 to 50 में एक्टर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 जो सरवाइव कर गए हैं, इन्होंने उनको भी नहीं आगे बढ़ने दिया। वी डिड अ शो ऑन दैट आल्सो। ऋतिक रोशन की हिट्स निकाली और देखिए, सारी अपने पापा वाली फिल्में हिट हुई उसकी, उसको फिल्म ही नहीं मिलने दिया इन्होंने। सर दैट इज व्हाट आई सेड ना, इवन अभिषेक बच्चन एंड जो अदर एक्टर्स थे बीच में, अच्छे एक्टर्स आए थे, उन्होंने उनको ग्रो ही नहीं होने दिया ना। हमने ये भी इसके ऊपर भी शो किया था कि बिकॉज ऑफ दीज 5 people they didn't let anybody grow and they have not 5, 6 people and now their children are coming. अब they are also becoming OTT launchers ना। अभी वो जो जोया अख्तर जो है, इनके जो बच्चे हैं ना, कल जो सब OTT पे लॉन्च हो रहे हैं, वो इनके बच्चों को नहीं आगे बढ़ने देगा सर। वो सब OTT पे लॉन्च हो रहे हैं। वो जोया अख्तर कर रही है, वो आर्चीज जो वेब सीरीज बना रही है, जिसमें सुहाना खान, खुशी कपूर एंड वो अगस्त्या बच्चन का लड़का है। ओके ठीक है, एक मिनट। Why should you get upset about it? Many please understand. पहले जब इनका स्टार किड लॉन्च होता था ना, स्टार किड लॉन्च जब कोई होता था, तो उसको
यश चोपड़ा एक फिल्म बनाते यस थे यस यस, और उसमें लॉन्च करते थे है ना। या करण जौहर करता था। या नहीं, करण जौहर तो बहुत बाद में आए। करण जौहर इज नॉट अच्छा, दैट शुरू की बिग, बात कर रहे हो। बॉलीवुड का बड़ा बनाया हुआ है उनको। करण जौहर इज नो नो फिल्म मेकर। फिल्म मेकर दूसरे थे बड़े, जो फिल्म बरजातिया यूज टू लॉन्च, YRF यूज टू लॉन्च। वो लोग आकर बड़े लोगों को लॉन्च करते थे, मतलब स्टार किड्स को। तब जाके इनकी लॉन्चिंग होती थी, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, होल नेशनल मीडिया यूज टू टॉक। उसके बाद कोई सिप्पी आते थे, वो लॉन्च करते थे। कोई अभिषेक बच्चन को लॉन्च करते थे, 2 साल बात होती थी। अब क्या हो रहा है, इनका लॉन्चिंग कहाँ हो रहा है? OTT पे। एग्जैक्टली, किसने देखा? दैट इज व्हाट आई एम जंगल में सेइंग। मोर नाचा, किसने देखा? एग्जैक्टली, सो नाउ दैट चिल्ड्रन जिनके लिए गद्दी बिछा के रख रहे थे, क्या असर हो रहा है उनका? वो सब ओटीटी पे लॉन्च हो रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कहा ना शो में This कि is नाउ दे आर all OTT स्टार। poetic justice. So all लेट those लेट देम बी people, OTT स्टार्स, yes, OTT एक्टर्स, व्हाटएवर। all those people who think कि सुशांत को जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा कि सुशांत को कैसे जस्टिस मिल रहा एक और भी है। चीज है, एक और भी चीज मैं सबको बता दूं। अगर आप सब लोग घर में बैठने लगोगे ना, तो मिलने वाला भी होगा जस्टिस, तो मिलने वाला नहीं है। आप लोग बैठे रहो घर में। जिस हिसाब से घर में बैठ रहे हैं ना लोग, चुपचाप सोच रहे हैं कि दुनिया सब नॉर्मल हो गई, वही तो बॉलीवुड भी सोच रहा है कि दुनिया नॉर्मल हो गई। कहाँ नॉर्मल हुआ? सब तो ओटीटी पे आ गए हैं। इट्स नॉट नॉर्मल। अरे मैं अब यार एक मैं डिफरेंट लाइन पे हूँ, आप डिफरेंट लाइन पे ले आ रहे हो मुझे। मैं कहीं जा रहा हूँ, आप मुझे कहीं और ले आ रहे हो। आप एक मिनट, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां जाने दो ना मुझे। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो अपना, उनके हिसाब से सब कुछ हंकी डोरी है। उनको लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गए, हमारी एक काठियावाड़ी चल गई है, बस हमारा कल्याण हो। पब्लिक आ गई थिएटर में वापस, वो इसी बात से खुश है। अरे भाई, थिएटर में आ गई KGF देखने के लिए, RRR देखने के, आपको देखने के लिए थोड़ी आई है। तो अल्टीमेटली अगर पब्लिक ने सब कुछ क्रिएट किया और पब्लिक ही चुप बैठ जाएगी घर में, तो फिर आपका कैंपेन डाइल्यूट हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब अगर आपको मिल रहा है पोएटिक जस्टिस, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग भी चाहिए। घर में बैठ के पोएटिक जस्टिस को बेच नहीं पाओ, मार्केटिंग तो जरूरी है ना, नहीं है? जब तक सर द आपको होल सक्सेसफुल नहीं पॉइंट मिल रहा इज, था, सक्सेस नहीं मिल रहा था, आप लोग लड़ रहे थे। अब सक्सेस मिल रहा है तो कहाँ है, कौन है सेलिब्रेट करने की? Why should you सर not celebrate? Every development should be celebrated. Why? You have struggled for it. But सर there's nobody to celebrate. वो भी अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। सर मेरा तो जो जस्टिस था सुशांत का, वो 3 लेवल्स पे था। एंड तभी मैंने हमेशा आपके प्लेटफॉर्म पे बोला है कि बाइकॉट बॉलीवुड वाज इम्पोर्टेंट। इफ़ यू लुक एट द वीडियोस ऑफ 2020, जब आप फेसबुक पे कर रहे थे, इफ़ यू गो बैक एंड यू लिसन टू मी, आई सेड दैट इफ़ यू डोंट गो एंड वॉच मूवीज ना, दैट इज गोइंग टू किल बॉलीवुड। उन्होंने सुशांत को मारा ही इसके कारण था ना, क्योंकि ही वाज राइजिंग and he was doing so well. You said I have all the videos. You said it much later. There were others who were talking. No, Before you came to the platform. no, आप जाके देखना वीडियोस। है मेरे पास वीडियो। हाँ, आप निकाल के देखो, even do a, मैं रेफर कर दूंगा आपको। हाँ, आप नहीं आ रहे yes, थे। You were yes, not the speaker at that. okay, maybe that time, maybe जून जुलाई में, अगस्त में होगा, I don't know, Correct. I'm talking शुरू about. में होगा। But the whole thing is, when Bollywood is feeling the pinch, basically it is not only going to disturb the the domination that certain production houses and certain actors have. It also goes beyond. It also goes beyond to the underworld, where they were getting this 300 rupees की tickets बेच के करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं. It is also going to affect the drug system. It's all interconnected. इस करके बॉलीवुड का नहीं सिर्फ भस्म हो रहा है, जो उनके पीछे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और ये मनी दे रहे थे, डिस्पाइट देम हैविंग बिग फ्लॉप मूवीज जिसमें उन्होंने शाहरुख खान एंड सलमान खान एंड ऑल हैड इन्वेस्टेड सो मच मनी एंड स्टिल। मैंने एक अपने व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन का आप ही जवाब दे दो। सीमा अभी यादव, शी इज सेइंग कि क्या इस डिबेट का सुशांत कॉन्टेक्स्ट में कोई फायदा होगा? किस डिबेट का? अभी जो हम लोग कर कि बॉयकॉट बॉलीवुड का अभी क्या जस्टिस हुआ है, जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन का सुशांत के कॉन्टेक्स्ट में क्या फायदा होगा? तो ओके, तो सर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर एक इंसान का एक अपना नजरिया होता है देखने में, है ना। टेबल पे अगर एक पानी का गिलास है, वो आधा भरा हुआ है आधा खाली है, जिसके लिए वो आधा भरा हुआ है वो आधा भरा हुआ देख रहा है,
जिसके लिए वो आधा खाली है, वो आधा खाली ही देख रहा है। मैं जो आधा खाली देख रहा है उसको कन्विंस नहीं कर सकती हूँ, और जो आधा खाली देख रहा है वो मुझे भरा हुआ ग्लास है, मेरे को चेंज नहीं कर सकता है। तो ये ईच वन टू देयर ओन। फायदा है नहीं है, आपको नहीं लग रहा है, आपके लिए नहीं फायदा है। मुझे फायदा दिखता है कि बॉलीवुड नहीं सारा नहीं, आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। answer to that is that what she is asking, basically what we are discussing is the poetic justice. तो Yes. poetic justice तो डायरेक्ट नहीं होता है, वो तो इंसिडेंट पे आप पिक कर सकते हो। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो आप बोए हो ना वो आपको मिल रहा है। क्यों? Yes. क्योंकि आपको तो पब्लिक चिल्ला रही थी, आप खड़े नहीं हुए। Basically तो law of मेरा क्या karma. बिगड़ता है? तो आज आप कोई बात कह रहे हो, उसमें इतना बवाल हो गया, आपको सब लोग ट्रोल कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तक ट्रोल कर रहा है आपको, और आपके लिए बोलने वाला एक आदमी खड़ा नहीं है। इसको नहीं बोलते पोएटिक जस्टिस, तो किसको बोलते पोएटिक? ये उसको ये भी बोलते हैं कर्मा, कि जो वही है, आप करोगे। हाँ, तो आई एम ठीक है, आल्सो कर्मा एक्सप्लेनिंग इट टू कुछ हर भी, ना हाँ, जो भी इन बोल रहा अनदर वे, या है। कि जैसे आप करोगे वैसा ही भरोगे। जब सुशांत की डेथ हुई, उसको ही वाज नो लॉन्गर देयर, किसी ने कुछ नहीं बोला, इतना पब्लिक ने उनको बोला कि आके उसके लिए जस्टिस मांगिए, उसके साथ गलत हुआ है। द होल ऑफ बॉलीवुड जस्ट वेंट साइलेंट। So today the whole public has gone silent as far as Bollywood is concerned. आपको जो No, मर्जी they are बोलना है not gone बोलते जाओ। silent. They are trolling you badly. Yes. They are not leaving anything. आप अगर विमल का ऐड करोगे तो पब्लिक बख्शेगी Yes, नहीं आपको। exactly. And sir, ये अक्षय कुमार का जो विमल की ऐड है, मतलब कि इतना क्लियर है कि वो कैसे ये लोग बदल जाते हैं। अक्षय कुमार ने अपने आप को सेंट बनाया हुआ था, अब असली कलर पता चल गया ना अक्षय कुमार का क्या है। वो अक्षय कुमार ने गलती मान ली, लेकिन गलती मानने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, गलती तो उसको माननी पड़ेगी, उसके पास कोई चारा ही नहीं है। वो तो जब सुशांत अजय देवगन ने तो गलती मानी है आज, मैंने पढ़ के बताया ना। हाँ, सब गलतियां मान रहे हैं क्योंकि ये सब पैसे का खेल है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे। कृतिका सोनी कह रही हैं, सर साउथ एक्टर्स हैव नॉट बिकम बिग नाउ, जस्ट दैट बिकॉज पीपल वांट टू बॉयकॉट बॉलीवुड, इसीलिए लोग साउथ मूवीज को देख रहे हैं, उनको लग रहा है साउथ इंडियन फिल्म बेटर है, और इसीलिए वो जा रहे हैं फिल्में देखने के लिए। अल्टीमेटली एंटरटेन करना है तो हम वहां से हो जाएंगे, आपकी जरूरत है। सर मेरे लिए तो मतलब कि मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज वे ऑफ थिंकिंग. I don't think so that Hindi film industry doesn't make good films. I do not agree with that. There are very beautiful films also that are being made here. The only reason we are no. Tell me which is a beautiful film. मतलब केदारनाथ हो गया, छिछोरे हो गया, धोनी हो गया, कुछ फिल्में जो आयुष्मान खुराना ने बनाई हैं वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक आध फिल्म जो मतलब इधर उधर बन जाती है, जो खास करके या तो बंगाली बना देते हैं, या फिर कोई एक आध बन जाती है, चाहे वो सर नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी फिल्म बन रही है अच्छी, बताइए। बहुत अच्छी वो क्या सुपर 30 वाज अ वेरी गुड मूवी। अरे वो 2 साल हो गया। हाँ, तो 2 साल हो गया ना, तो किस साल की बात कर रहे हो बताइए ना। 2 साल में 2 साल में मैंने पिक्चर ही नहीं देखी, तो मैं क्या बोलूंगी। ऋतिक रोशन की बात आप मत कीजिए। ऋतिक रोशन इज अ हार्ड वर्किंग फिल्म। सर यू आर टॉकिंग अबाउट 20। आप 10वीं देखिए, 10वीं इज अ क्वालिटी फिल्म, लेकिन वो चल रही है क्या? नहीं चलेगी वो गेहूं के साथ घुल भी पिसता है ना। नहीं, आप कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? 20 to 22? इस 2 साल की बात। हाँ, मैंने कोई पिक्चर ही नहीं देखी है तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकती। नहीं, बट नहीं देखना अलग चीज है, बट नॉलेज रखना तो जरूरी है ना। अब जैसे अभिषेक की बच्चन की 10वीं आई है, नाउ एवरीवन इज सेइंग 10वीं इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, बट गेहूं के साथ घुल पिसता है, वो भी पिस रहा है, वो बेचारा गलत पड़ गया। वो पहले फिल्में नहीं मिलनी थी, अब एक आध फिल्म मिल रही है तो पब्लिक के बॉयकॉट कॉल में धुलते जा रहे हैं सारे। वो भी तो ओटीटी पे रिलीज नहीं हुई? ओटीटी पे रिलीज हुई है, अभी नहीं चली, पैसा नहीं बनाती ना ओटीटी। तो उसमें हमारा क्या कहना है? वो उसने कुछ बोला ही नहीं जब सुशांत सिंह राजपूत पास्ट अवे। मेरा कहना मतलब ये है कि इंडस्ट्री में अगर आपको देखना है तो इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंट लेवल पे विक्टिम्स हैं। जैसे परपिट्रेटर्स हैं, वैसे विक्टिम्स भी डिफरेंट लेवल पे। ऐसा नहीं है कि एक ही विक्टिम इंडस्ट्री में रहा। हम उसको इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज वी लॉस्ट हिम। अगर वी वुड नॉट हैव लॉस्ट हिम, हमको पता भी नहीं चलता ना कि वो विक्टिम था। तो सर मैं हमेशा यही बोलती हूँ, व्हाई सुशांत सिंह राजपूत लॉस्ट हिज लाइफ, देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट। This is the purpose. But it may be there is purpose. The man loss is a loss. Who wants to lose a
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड तो इस करके अगर मान आप लो सुशांत का लाइफ नहीं गया होता तो पता चलता क्या सुशांत के साथ क्या हो रहा है? नहीं पता चलने देते ये लोग, दबा के रखते उसको। बिल्कुल तो ऋतिक दबा ही रोशन के रहे साथ थे क्या हुआ किसको मालूम है? सर, अभिषेक दबा ही बच्चन के रहे साथ थे, क्या हुआ किसको मालूम है? दबा ही रहे थे ना। द पॉइंट इज कि जब सुशांत के साथ ऐसे हुआ, जब वो जो लोग दब रहे थे उनके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी टू रेज देयर वॉइस एंड दे डिडंट। हाँ तो नो वन, तो फिर नो नॉट 1% रेज। एग्जैक्टली exactly, तो फिर आपको पिसना पड़ेगा, या तो हिम्मत दिखाते या पिसो। करेक्ट, आई एग्री। आपको ये तो नहीं है कि भैया गुण भी खाओ और लड्डू भी खाओ, क्योंकि हम तो पिस रहे थे, हम चुप हैं क्योंकि हमारे को काम चाहिए था। नो, यू शुड हैव गॉटन अप एंड वॉइस्ड, यू डिडंट। वो तो ठीक है, मैं मेरा पॉइंट है, मेरा माय पॉइंट इज दिस, दैट इन अ वॉर ना यू पिक योर यू पिक बिगर योर साइड, यू बिगर पिक योर, इविल ना, यू डोंट पिक योर लेसर इविल। सो जो लेसर इविल है ना, वो तो पहले से ही मर रहे थे। और अभी साउथ इंडियन इंडस्ट्री क्यों चल रही है? क्योंकि ये मरे हुए थे। अब पब्लिक ने घुमाया नजर इधर, तो उनको पता चला कि यहाँ फिल्में अच्छी बनती है। वरना इन्हीं फिल्म को रीशूट करके दोबारा ओल्ड वाइन या न्यू बॉटल दे रहे थे, और हम लोग वो फिल्म को देख के बोलते थे क्या एक्टिंग किया, वाह क्या म्यूजिक है। सेम सेम बॉडीगार्ड विजय ने की है तमिल में, सेम बॉडीगार्ड आप सलमान खान बना रहे हैं, सीन टू सीन सेम है। या वांटेड, वांटेड आई एम टॉकिंग अबाउट वांटेड, नॉट बॉडीगार्ड, वांटेड, सेम सीन टू सीन, and they made lakhs and crores of rupees on that. Is that your work? It is not your work. It is तो South ठीक India है ना film. सर। सो सडनली एवरी द पब्लिक हैज रियलाइज ना कि ये सब स्टार्स को इतना ऊपर बना के रखा हुआ था। अभी देख लो, वही पब्लिक फाइट कर रही है ना सुशांत सिंह राजपूत के लिए। दिस इज द टर्न दैट हैज टेकन प्लेस। देयर इज अ कंप्लीट सोसाइटल चेंज, द परसेप्शन ऑफ पब्लिक इज कंप्लीटली चेंज। इससे बड़ा क्या बात हो सकता है कि एक 34-year-old बॉय मैन, 32, लाइक 30, 32 ना? 34 when he died. अच्छा ओके। A 34-year-old man has turned the whole world and has changed the whole perception of Bollywood. क्या मैजिक था सुशांत सिंह राजपूत में? क्या था? नहीं, मुझे मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें मैं नहीं, मेरा लगता है, मुझे लगता है हर एक चीज की हद हो जाती है ना। सुशांत डेथ इज अ, मतलब इज द लास्ट स्ट्रॉ, Yes. लास्ट नेल इन द कॉफिन बोलते हैं ना, वो दैट इज द Yes. लास्ट नेल इन द Yes. कॉफिन। Yes. ये करना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था। वो चाहे सुसाइड हो चाहे वो मर्डर हो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट ये सर्कमस्टेंसेस Yes. किसी के लिए भी आप खड़ा मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। या तो उसका मर्डर हो रहा है या वो सुसाइड कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपने वो हालात पैदा क्यों किए जिसका कंगना रनौत ने जिक्र किया? ऐसे और भी लोगों के लिए हालत पैदा किया। तो जो कर्म होते हैं ना, वो अल्टीमेटली घूम कर एक दिन आपके पीछे आता है। उसमें अच्छे भी मारे जाते हैं और बुरे भी मारे जाते हैं। सर मैं आपको बताती हूँ, इंस्टाग्राम में देर इज दिस थिंग कॉल्ड कोट्स ऑफ SSR, या एक सेल्फ म्यूजिंग करके, देर इज समबडी हु हैज मेड पेजेस। जो कोट्स फॉर SSR में ना, वो जो उसके इंस्टाग्राम में सुशांत ने डाले हैं ना कोट्स, अकॉर्डिंग टू द डेट एंड ईयर वो डालता है। और अभी मैंने देखा है रिसेंटली ही इज पुटिंग सुशांत इंस्टाग्राम पोस्ट ऑफ अप्रैल, तो आपको उसको स्टेट ऑफ माइंड पता चल रहा है कि इंस्टाग्राम में क्या डाल रहा है वो। कौन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड कोट्स फॉर SSR इंस्टाग्राम पे। आपको पता चलेगा कि अप्रैल के मंथ में सुशांत का क्या बेंट ऑफ माइंड था। सो आई एम रीडिंग दोस कोट्स दीस डेज। तो ऐसे भी एविडेंसेस हैं, ये सब तो नहीं मिटा सकते ना ये लोग। तो क्या वो उसमें क्या लिख रहा है? जो सुशांत ने इंस्टाग्राम में डाला था 2020 में, क्या लिखा है उसमें? अभी लाइक टुडे इरफान खान डेथ के बारे में उसने लिखा है कि सर आपकी बहुत याद आएगी। सुशांत हैज रिटन दैट। ओके। So similarly, he's also written about, you know, some scientific. He's written a quote by some scientific guy about existence and you know, about मतलब कि philosophical. You have to read it yourself. It's difficult for me to kind of explain. So all those people who are interested, so this is also kind of evidence, ना? This is also kind of evidence that उसका क्या state of mind था. mental state. Yes, and उसमें he had started exercising in the gym also. He's put a gym video also. पहले he could clap 3-4 सुपरमैन क्लैप बोलते हैं उसको, 3-4 claps in one go.
अब इसमें दिखा रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू डू द फर्स्ट क्लैप, दैट मीन ही वाज ट्राइंग टू गेट बैक इनटू हिज नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। उसने डिसाइड कर लिया था कि जो भी मेरे सर्कमस्टांसेस हैं मैं उसको फाइट करूंगा। ही वाज गेटिंग बैक टू थिंग्स इन अप्रैल। You go, everybody who's on Instagram, go and follow this guy Codes for SSR. वो उस डेट को लेकर 16 का भी डालता है, कई बार 17 का भी डालता है, 18, 19, 20 डिपेंडिंग ऑन उस डे, उस मंथ, उस ईयर में उसने क्या बोला था। ही इज रीपोस्टिंग सुशांत पोस्ट, एवरीथिंग इज एवरीवेयर। People don't, authorities don't want to do anything. This is the only way public can do. आप कहते हैं ना सब चुप बैठे हैं या हम चुप्पी से बॉलीवुड को खत्म कर देंगे, ऐसे घर पे बैठे बैठे कोई जाएगा ही नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास? वो अलग है कि हम लोग घर में बैठे बैठे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। मोर वॉइस विल ऑलवेज बी हर्ड मोर, एज सिंपल एज। आपके जो पिछला 1 साल का वॉइस था, फर्स्ट 1 साल का वॉइस था, उसका इम्पैक्ट आज तक चल रहा है। आप अगर कल दोबारा वॉइस करोगे तो इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। बहुत सारी चीजें वी कैन नॉट डिस्कस ऑन द प्लेटफॉर्म, बट द फैक्ट रिमेन्स कि आप जो कुछ भी अभी तक देख रहे हो वो सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के कैंपेन का नतीजा। कैंपेन ही नहीं है। Where is the campaign? So campaign की बात नहीं है। You also have to see that people have also started leading their own lives, but they are doing it in a different way. That is exactly what I mean. That when you say campaign, campaign is always concerted. When it is not concerted, it's not campaign. Then it's just a no. So boycott Bollywood. Supporting a cause is different from running a campaign. There's a difference. So boycott Bollywood की जो campaign है वो तो चल ही रही है, हम सबको दिख रही है। कोई सिनेमा हॉल जाता ही नहीं है हिंदी पिक्चरें देखने के लिए। It's a campaign which is still going on. So that's why I'm doing this show, na? Yes. That ultimately boycott Bollywood call का ही तो impact है कि South Indian वाले actors अब उनको आंख दिखा रहे हैं। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। Yes, exactly. We are waiting for others to join in. अकेले Manny was holding the fort. Now good, आप आ गए हो। बोलिए मधु। सर मुझे बस यही बोलना है ना कि जब रियल हीरो बनने की कोशिश करता है ना, तो यही नहीं, आप रियल हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। रियल में आप सिंघम बन सकते हो, आप देश हित में पूरे वर्ल्ड से लड़ाई कर सकते हो, लेकिन जब आप रियल दुनिया में आते हो ना, तब आपको आपकी सच्चाई दुनिया को जो आपके अंदर है वो दिखती है। जैसे सर इन्होंने ट्वीट किया सबसे मजाकिया बात तो ये है कि हिंदी में है वो, मतलब जो लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है। तो सर जिनकी जुबान केसरी है और जो लिखते हैं इंग्लिश में, वो जब अचानक से हिंदी की बात करने लग जाते हैं ना, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मजाक लगता है। ठीक है, हिंदी सिर्फ इनका कमाई का जरिया है, यानी हिंदी से ये सिर्फ पैसे बनाते हैं, और यहाँ भी ये हिंदी से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत, इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, ये इनका काम है, मतलब हिंदी से ये पैसे कमाते हैं। और जहां तक सर ये इनका जो रीजनल सिनेमा के साथ जो इनका तो इन्होंने मधु हिंदी में क्यों अजय देवगन ने ये ट्वीट हिंदी में क्यों व्हाई? ऑब्वियसली सर, हिंदी जो बोलने और सुनने वाले जो लोग हैं ना, जो सच में, जो मतलब जिसको कहते हैं ना, वो हिंदी इंग्लिश वाले नहीं, जो रियल हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है, उनको वो टारगेट है इस वक्त उनके, मतलब वो उनको इन्होंने टारगेट किया हुआ है। हिंदी इंग्लिश और रीजनल वालों को नहीं, इनका भी मेन टारगेट हो गया है जो हिंदी, मतलब कैसे ना कैसे करके सर इनको ऑडियंस लेना है। इनकी मूवीज आ रही हैं, अभी अजय देवगन की भी मूवी आ रही है, मतलब कितना बेवकूफ समझा हुआ है ना। अभी भी ये हमें बेवकूफी समझ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी है कि इतना सब कुछ हो रहा है और ये ऑडियंस को अभी भी बेवकूफ समझे हुए हैं कि बेवकूफ जिनको समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो बेवकूफ है, एक्चुअली यही बेवकूफी है कि आप बेवकूफ अब सोच रहे हैं कि दूसरा बेवकूफ है ना? एग्जैक्टली, आप बेवकूफी है कि आप सोच रहे हैं दूसरा बेवकूफ है। सर मेरे को तो सबसे बड़ी हैरानी ये हुई है ना कि अजय देवगन एक ऐसा हीरो है जो हमेशा से हीरो है, मतलब शायद मैं जब छोटी थी तब से वो हीरो है। वो जब मूवी आती है ना, फूल और कांटे से हीरो है, हाँ, तब से वो हीरो है। लेकिन तब से लेके आज तक से सिर्फ इसको मैंने सिर्फ मूवी में हीरो बनते हुए देखा है। रियल लाइफ में आज तक मेरी नॉलेज में कभी नहीं आया है कि कभी हिंदुस्तान से रिलेटेड या अजय देवगन की पुरानी फिल्म पिछले 5-6 साल की फिल्म देखूंगा ना, तो 90% तो तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, कन्नड़ फिल्म, मलयालम फिल्म का रीमेक है सारी, 90%। नहीं सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो अजय देवगन पर्टिकुलर, अगर मैं
अभी अजय देवगन की बात करूं तो मेरी नॉलेज में कभी नहीं आया है कि जो ये रियल हीरो है वो कभी रियल में आकर के कभी हिंदुस्तान की बात या आम जनता के लिए कुछ बात या किसी भी ऐसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड या किसी भी जनरल चीजों में इन्होंने बोला हो। फर्स्ट टाइम है ये लाइफ का इनका, जब इन्होंने बोला, और बोला भी तो क्या ही, मतलब क्या मजाक बोला, मतलब इतना मजाक बोला कि लोग मतलब हंस हंस के पागल हो गए इनका ट्वीट्स देख करके। और नीचे में एक और मतलब मस्त मतलब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो यही ट्वीट अगर किसी दूसरे लीडर ने किया होता, 1 मिनट के लिए किसी बीजेपी लीडर ने किया होता, तब तो पब्लिक बोलती कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी को होना चाहिए। अजय देवगन से इतनी नफरत क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉलीवुड से है या कुछ और भी है? दो रीजन अचानक से 60 साल की उम्र में आपको हिंदुस्तान और हिंदी और इन सब के लिए प्यार जाग गया, मतलब अचानक से। आप नहीं है, ऐसे मत बोलो, बेचारा डिप्रेशन में चला है, 52। हाँ जो भी है, मतलब ठीक है ना, 50 से अबव सब 60 इयर्स के ही होते हैं, मतलब हाउ कैन यू से दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ओके, हाउ कैन यू से दिस 50 से अबव सब 60 होते हैं? मतलब मैनी इज आल्सो प्रोटेस्टिंग, ये क्या है? मतलब मैनी की आवाज बंद है, मैंने बंद की हुई है, वरना मैनी, यस मैनी, ये तो दिस इज रिडिकुलस। मैं बोल रही थी मधु को 50 इयर्स का होने दो, फिर देखते हैं क्या बोलती है मधु। 50 के ऊपर स्ट्रेट अवे 60। मैथ्स में हम राउंड ऑफ करते हैं ना, मैथ्स में हमने पढ़ा ना राउंड ऑफ, तो मैं 50 से ऊपर सबको राउंड ऑफ देती हूँ, 50 से नीचे सारे। मधु, कल तक इफ यू आर 39 एंड टुडे यू टर्न 40, यू बिकम 50। हाँ हाँ, नहीं 40 कैसे राउंड ऑफ होगा? नहीं नहीं, जब तक अगर आपका जो नंबर है ना वो 50 को टच नहीं करता है ना, आप यंग अपने आप को समझो। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, व्हाट एन एक्सप्लेनेशन, कि जब तक 50 को नहीं टच करे तो यंग है, और 50 को टच करे तो वो 60 हो गया सीधा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सर वैसे भी देखिए, हमें रिटायरमेंट एज को भी देखिए ना, 60 है ना, तो ठीक है चलो रिटायरमेंट एज ठीक है 60। मतलब मेरा ये कहना नहीं है सर, मेरा क्या कहना है ना कि आप अजय देवगन का ये ट्वीट ना इतना मजाकिया लग रहा है कि कोई कहने की हद नहीं है। मतलब अचानक मैं ये पूछ रहा था कि आखिर क्या रीजन है, व्हाई आर दे पिकिंग ऑन अजय देवगन? तो अजय देवगन से क्या दिक्कत? अजय देवगन सर जो भी अभी बोलेगा ना, जो भी फ्रंट में आके खेलने की कोशिश करेगा ना, वो बैक ऐसे ही पड़ेगा उसको। आप बैक में केवल अजय देवगन को या बॉलीवुड के कोई भी कोई भी अभी कोई भी आ जाए जो ना फ्रंट में खेलने की कोशिश करे। मधु जी रुको, जो प्रीति को बोलने दो, उसके बाद आई जस्ट कम टू यू। आई हैव नॉट टेकन टू मेनी क्वेश्चंस, मैनी ने बहुत देर बोला है, यू हैवंट स्पोकन, सो जस्ट स्टे ऑन। यस प्रीति, प्लीज गो अहेड। Can you hear me? Yeah, please go ahead. Oh, thank God. Finally. So, hello everyone. Hi Madhu, hi Manny. Actually, टॉपिक मैं अभी ज्वाइन हुई तो मैंने ज्यादा सुना नहीं है, बट अजय देवगन की बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तो दे आर जस्ट, मतलब वो कुछ भी करने को तैयार है आपका अटेंशन लेने के लिए, कुछ भी। फिर आप वो कोई भी चीज काउंट कर लीजिए, फिर वो आप कुछ भी, आप वो अक्षय कुमार का सॉरी देख लीजिए, अजय देवगन के ट्वीट्स देखिए, और भी बहुत लोग हैं उस लाइन में, दे आर जस्ट गेट लुकिंग फॉर अटेंशन। बट एक चीज मुझे RRR वगैरह की जो मूवीज आई हैं उसके बाद ये फील हुआ है कि जब से वो पुष्पा और RRR ये सब मूवीज जो हिट हुई हैं, they are shifting a little more on the south side, and which is not good for us, क्योंकि अगर हमने उनको यहाँ रोका नहीं तो ये वहां भी अपनी चेन बना रहे हैं, क्योंकि इनके जो मेन कैरेक्टर हैं इनके नेपो सिस्टम के, वो सब उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, जो 2 बड़े बलवान लीडर्स हैं वो उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पे इनका गेम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली यू आर सेइंग प्रीति कि जब बॉलीवुड नहीं चल रहा है तो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो साउथ इंडियन फिल्म में कर रहे हैं। सो बेसिकली साउथ इंडियन ना सर, ऐसा पूरा नॉर्थ इंडिया मतलब बॉलीवुड का लगा हुआ पूरा तो नहीं, लेकिन उनका जो हिंदी वर्जन आ रहे हैं, क्योंकि 2 मूवीज काफी पॉपुलर हुई हैं उनकी, और उसके बाद भी बहुत सारी लाइन प्रोड्यूसर होते हैं तो आप पूरे एक फिल्म का होते हैं और वो मल्टीपल वर्जन उसके आते हैं, तो आप हिंदी फिल्म नहीं बना रहे हो तो आप साउथ इंडियन फिल्म बनाने लगो। हाँ, लेकिन वो पैसा तो बना रहे हैं ना सर, फिर कहीं ना कहीं से तो वही उनका डोर तो बंद नहीं हो रहा ना।
तो उनको हर जगह से हिट करना बहुत जरूरी है। फिर वो So साउथ मूवी basically the people who are affected are the actors and not the producers. That's what you are saying? नहीं सर, कोई यहाँ पे हिट नहीं हो रहा है। यहाँ सब मैं कह रहा हूँ कि जो अफेक्टेड हो रहे हैं वो एक्टर्स तो हो रहे हैं बॉलीवुड के, क्योंकि एक्टर्स तो फिल्म कर रहे हैं, फिल्म बन नहीं रही है, चल नहीं रही है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो अपना पैसा उधर भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स उतने अफेक्टेड नहीं है। ये बोल सर रहा आप मुझे बताइए क्या हिट हो रहा है यहाँ पे? अजय देवगन को क्या हिट हुआ होगा? वो नहीं पूछे, उनके और भी बहुत सारी बातें चल रही है। तो हिट नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो पैसा लगा रहे हैं ना, तो उनको तो पैसा मिल ही रहा है, चाहे यहाँ से मिले या वहां से मिले। तो नुकसान एक्टर्स का हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो यहाँ की बजाय वहां ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा। वो तो है। मैं बॉलीवुड के अंदर का जो ग्रुप है उन्हें तो किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है सर, प्लीज। वो लोगों की बहुत जगह खिड़कियां खुली हुई हैं, तो यहाँ से नहीं वहां से बना रहे हैं, वहां से आजकल आप रिसेंटली जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं आप देख लीजिए, सारे एडवर्टीजमेंट में वो गिने चुने 5-6 चेहरे हैं। कहाँ से पैसा बना रहे हैं? उनकी ये खिड़की बंद हुई, वो वहां से खोल के बैठे हैं। What is the solution? Solution to boycott them from everywhere, sir. Everywhere. It's How do you boycott an ad? How you boycott? An ad. We have to just tag them that we don't want to see this face. You're talking about tagging the company. Yes, I mean, what we gonna do next then? I mean, we have to tag the particular product or a company that no, we don't want to see this face. You can't push her कि हमें सारा को ही दिखा के ये प्रोडक्ट देना नहीं। हम किसी नॉर्मल इंसान को देख के भी ले सकते हैं। वो टाइम चला गया कि लक्स में श्रीदेवी ही आती थी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी भी कंपनी जो है वो इन्हीं लोगों से क्यों, सेलिब्रिटी से क्यों करवा रहे हैं? सर दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि 2 सालों से ये चीज चल रही है। एवरीवन, ऐसा तो नहीं कि हर आदमी ब्लाइंड है, सबको दिख रहा है कि कितना क्रोश है लोगों में, तो भी ये लोग इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स में आ रहे हैं। आई एम वेरी सरप्राइज फॉर दैट एज वेल। आई डोंट नो द रीजन, बट मैं बताता हूँ रीजन क्या है। यू वांट टू नो द रीजन? आई विल टेल यू। जो एडवर्टीजमेंट है ना वो एड एजेंसी के थ्रू आती है, करेक्ट? अब एड एजेंसी कौन सी है? जो अब जिनका नाम अब हो गया है क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कमेटी ना कंपनी। तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी का एक पोर्शन जो है वो एड मैनेजमेंट भी है। तो जो एड कंपनीज हैं वो उनके टच में है, सेलेब मैनेजमेंट कंपनीज के टच में। और ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं, चाहे वो कौन हो, चाहे वो कोई भी हो, कॉर्नरस्टोन हो, कोई भी हो, ये 2 लोगों को ज्यादातर मैनेज कर रहे हैं। या तो एक्टर्स को कर रहे हैं या फिर क्रिकेटर्स को कर रहे हैं। क्रिकेटर्स को तो सारे एड जो डेलिबरेटली इन्हीं की पॉकेट में लाके डालते हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ा हिस्सा पगार का इनसे आता है। आप प्रोटेस्ट करोगे कि हमको वो नहीं देखना है, लेकिन जो इन्होंने वो जो बनाया हुआ है ना इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है दैट ओनली देयर पीपल कैन गेट इनटू द सिस्टम। और सुशांत सिंह राजपूत कैन नॉट सर्वाइव इन द सिस्टम, दे वोंट लेट हिम सर्वाइव इन द सिस्टम। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, जब तक इनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सिस्टम इज नॉट वर्किंग, आपको पब्लिक आज रिजेक्ट कर रही है, कल आपको साउथ इंडिया फिल्म रिजेक्ट करेगी, परसों आपको भोजपुरी फिल्म भी रिजेक्ट कर देगी, आपको अपने आप एड कंपनीज भी रिजेक्ट कर देंगी। ये सिस्टम को आपको लगता है कि आप मैनेज कर रहे हो। दुनिया में गवर्नमेंट तो मैनेज ही नहीं होती है, गवर्नमेंट तो बदल जाती है, तो आप क्या चीज हो? यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, तो आप तो एक एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। तो फिर यूज द रॉन्ग नोशन कि आप उस इकोसिस्टम को कंट्रोल करके ये कर लोगे। सो आई एग्री विथ यू, बट द रीजन व्हाई दे आर गेटिंग एड इज द बहुत मोटी मनी पगार की उनकी इनसे आती है, इसीलिए दे कैन नॉट इवन डू एनीथिंग। उनके पास चॉइस भी नहीं होने हटाने का। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। Why are they hiring somebody like entertainment editor working with a news channel? Why are they hiring in the celeb management company? Can you explain? He's the same person who's been accused of writing a blind article, right? Right. The person who writes a blind article about an actor who dies is called by CBI for interrogation. The same person is hired by the same management company
Why is the management company hiring him? Celeb management company is hiring him on the basis of what? CBI has summoned him, भाई. That's फिर true. आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा हो. That's why you are being hired. Irrespective की whether CBI calls you or this calls you, we will take care of you. You don't worry. Just do what we are telling you. So इस इकोसिस्टम को आपको कैसे डील करना है? That is what something you will have to think and the actors will have to understand. ये इकोसिस्टम ज्यादा देर नहीं टिकेगा. Yeah. नहीं, इनको कम्प्लीटली बैकआउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये वापस से अब धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो रहे हैं. इनको लगता है कि दे कैन एंड दे आर जस्ट शोइंग कि हाँ हम लोग कितने हैप्पी हैं, बट प्रेशर है, वो दिखता है, प्रेशर है. कुछ लोगों को है, आई वुड नॉट से कि वो जी जो प्रीति प्रेशर नहीं होता तो ये ट्वीट ही नहीं होता. मधु, हाँ वो तो है, ट्वीट नहीं है, इतना अटेंशन इधर उधर हर जगह पे हाथ पैर मार रहे हैं, वो दिख रहा है क्योंकि वो एंजाइटी दिख रही है. यस मधु. सर अजय देवगन की ट्वीट पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ी मतलब कितना बेवकूफी भरा लाइन एक लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब कितने, और वो भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आपको हिंदी से प्रॉब्लम है तो हिंदी में क्यों डब करके अपनी मूवी बनाते हो. और अगर उन्होंने कहीं पूछ लिया कि भैया तो तुम हिंदी वाले अगर इतना स्मार्ट हो तो तुम हमारी मूवी को क्यों चीटिंग करते हो, रील टू रील एक भी चीज इधर उधर नहीं. दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट. ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि भैया हमारा धंधा बंद हो गया. आप समझो मधु, आप लॉजिकली समझो, इनका पूरा बिजनेस, इकोसिस्टम की बात कर रही है ना प्रीति, पूरा बिजनेस देखोगे ना तो बिजनेस इज बेस्ड ऑन रीमेकिंग फिल्म्स, नॉट मेकिंग फिल्म्स, रीमेकिंग फिल्म्स. ये रीमेक्स बनाते हैं. साउथ इंडिया की फिल्म उठाते हैं, उसको रीशूट करते हैं मुंबई के रोज सड़कों पे रात में, और डायलॉग भी चिपका देते हैं सेम, सीन भी चिपका देते हैं सेम, और उसको रिलीज करते हैं 300, 400, 500, 2000 थिएटर्स में, और 600 करोड़ रुपए लेकर सलमान खान घर चले जाते हैं. क्या फिल्म बनाया? बॉडीगार्ड. क्या फिल्म बनाया? वांटेड. क्या बनाया? रेडी. अरे भैया रेडी आपकी फिल्म नहीं है, वांटेड आपकी फिल्म नहीं है, बॉडीगार्ड आपकी फिल्म नहीं है, वो तेलुगु फिल्में हैं. तो ये जो अब जो साउथ इंडियन एक्टर्स ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने अपना ही बना के बनाना शुरू कर दिया ना, तो फिर जब अपना ही बना देगा तो पायरेसी का बिजनेस बंद हो गया. ये लोग बोल रहे हैं स्टॉप पायरेसी. ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है पायरेसी चला रही है. सिनेमा इंडस्ट्री ओरिजिनल. हाँ सर, पहले भी डबिंग होती थी लेकिन ये इसको हिंदी में डब नहीं करने देते थे. हिंदी में कब डब करते थे? जब वो बहुत खुशी मूवीज हो जाती थी ना, तब मतलब जब रिलीज होती थी हिंदी में डब नहीं होती थी. अगर हिंदी में होती ना तो बहुत पहले से ही हो गया था. हाँ ऑफ कोर्स. एक बार बचपन में याद होगा मधु, एक ऐड करते थे लोग, से नो टू पायरेसी, करेक्ट? हाँ. तो क्योंकि इनकी फिल्मों को सिनेमा हॉल में शूट करके उसको वीडियो सर्किट में रिलीज कर देता तो इनको नुकसान होता था. तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया, से नो टू पायरेसी. I'm asking Bollywood today, why are you pirating it? Why are you copying the South India films and trying to sell it as your own product? Is this not piracy? This is piracy. This is a systematic institutional piracy that Hindi cinema is running. No one has focused it. People should focus on this piracy. It's a systematic institutional piracy that Hindi cinema has been doing it for years. अब इनका धंधा बंद हो रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है. ये जो आया ना ट्वीट, ये उस मिर्ची का नतीजा है. यस मधु, गो अहेड. सर देखिए, रीजनल फिल्म को ये लोग बहुत बहुत सालों से कॉपी कर रहे हैं. वो जो आई थी ना हम आपके हैं कौन, वो पता है किसकी रीमेक है? एक भोजपुरी मूवी है नदिया के पार. नहीं एक मिनट, भोजपुरी फिल्म नहीं है भैया, एक मिनट. ऐसा बोलोगे ना तो लुटिया डूब जाएगा. सूरज बरजातिया का, सूरज बरजातिया की अपनी फिल्म है नदिया के पार, सचिन ने बनाई. उसी को सूरज बरजातिया ने दोबारा विलेज बैकग्राउंड से हटाकर शहर बैकग्राउंड में हम आपके हैं कौन बनाए. लेकिन वो तो भोजपुरी में है ना. अरे भैया भोजपुरी बैकग्राउंड, बिहार बैकग्राउंड पे बनाया, यूपी बैकग्राउंड पे बनाया सूरज बरजातिया नहीं है, राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है. वो उसका ऐसे क्यों है? कौन दिशा में लेके चला रे पटोइया, ये वो डायलॉग चुन लिया. अब वो डायलॉग चुन लिया इसका मतलब थोड़ी कि भोजपुरी फिल्म बन गई वो. ऐसा मधु, अगर ऐसे तुम हिस्ट्री करेक्ट करोगे ना तो मुझे मतलब फॉर्चुनेटली आई नो इट, सो आई एम टेलिंग यू. एक और फिल्म आई थी राज कपूर की, तीसरी कसम, तो वो भी बिहार में शूट हुई थी, पूर्णिया में.
अरे सर, तो भोजपुरी लैंग्वेज में बनाएंगे तो लगेगी नहीं कि रीजनल फिल्म है, वो तो एकदम रीजनल फिल्म लगती है। ठीक है, जो उसके प्रीति कुछ कह रही है, प्रीति बोलिए। हाँ, लो मैं भी बोल रही हूँ। प्रीति प्रीति पर कुछ मधु मैंने ये देखा है कि ये जो आप जो कह रहे हो ना कि आप डिफरेंट रीजन की मूवीज को जो हिंदी में डब करने लगे, ये जो फैशन मैं कहूंगी, ये जो ट्रेंड आया है ना, ये बाहुबली के बाद आया है। जब इन लोगों ने ये देखा ना कि बाहुबली कितनी सक्सेसफुल हुई है हिंदी वर्जन में भी, तब इन लोगों का दिमाग वहां से चलना चालू हुआ है, करेक्ट, क्योंकि उससे पहले नहीं था। ये मैंने शो में कहा कि बाहुबली ने इनको बताया कि हाँ, ये खुद बना सकते हैं उस तरह की चीज। जब आपको भैया मेक इन इंडिया चल रहा है ना इंडिया में, आज मोदी जी का कैंपेन है ना, पीएम का, मेक इन इंडिया, तो फिर मेक इन इंडिया तो मेक इन तेलुगु भी है, मेक इन इंडिया तो मेक इन कन्नड़ भी है, मेक इन इंडिया तो मेक इन तमिल भी है। आप मेक इन बॉलीवुड क्यों भाई? वहां का लोग है और यहाँ बना दो बॉलीवुड का, ये तो ऐसे ये बॉलीवुड टॉलीवुड सब अलग थे, पर अभी इतनी हालत इनकी खराब है कि ये सब एक हो गए हैं हाथ में मिला के, और इस सब के हिंदी वर्जन निकालेंगे धीरे धीरे। नहीं, कल को बॉली उड़िया मूवी भी आ जाए हिंदी में तो टेंशन मत लेना। नहीं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। पता है इसका रीजन क्या है? कि वो बॉलीवुड की क्या कहेंगे, जो टेक्निक है बॉलीवुड की, सॉरी बाहुबली की, वो कभी ये बना नहीं सकते। और ये साउथ इंडियन हीरोज को नहीं बना सकते हैं। मैं बताता हूँ मधु, बना सकते हैं, इतना टाइम इनके पास नहीं है, इनको जल्दी चाहिए पैसा। वही चले तो आज सुबह चलाएं और रात में रिलीज कर दें। नहीं सर, वैसा मसाला नहीं। हाँ बिल्कुल, बना ही नहीं सकते ना, इतना पेशेंस ही नहीं है। और एक बात बताए, ये जो भी आरआर मूवी आई है ना, जिसमें आपने बोला था एक बारी कि अरे वाह, क्या कौन है भट्ट, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को ले लिया। आपको पता है आरआर मूवी में आलिया भट्ट के मतलब शायद 4-5 सीन है, मेरी फ्रेंड देख के आई है, 4-5 सीन है, उसमें से 3 सीन में उसको बोलने ही नहीं दिया है। 3 सीन में बस टुकुर टुकुर देखने वाला काम है। तो साउथ इंडियन फिल्म ने ना बॉलीवुड को जगह दिखाया ना, यही तो बोल रहे हैं हम। हाँ, अभी वो इनको जगह दिखा रहे हैं। अभी जो प्रमोशन था KGF 2 का, आप उस वीडियो को देखिए, संजय दत्त इज कमिंग टू स्पीक, उस संडे को साइड में कर दिया। इमेजिन, संजय दत्त इज बीइंग पुश्ड टू अ साइड। दिस शोज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट साउथ इंडियन फिल्म्स हैव। इनको पता चल गया बॉलीवुड हमको एक्सप्लॉइट कर रहा था भाई, और हमारा रॉ मटेरियल, हमारा माल कमा रहे थे लोग। मुझे लगता है सर, बदला लेने के लिए भट्ट को और ये आलिया भट्ट को और अजय देवगन को ना, बदला लेने के लिए आरआर में लिया है। क्योंकि उनका जो रोल दिया है ना, मतलब एकदम साइड रोल, साइड हीरो हीरोइन के जैसा दिया है। आलिया भट्ट को बोलने दिया, लास्ट में लेके आए, वो भी पहले ऐसे ही करते थे ना। पहले अमिताभ बच्चन के हम में रजनीकांत को 3 डायलॉग मारने के लिए बुला लेते थे, वो 2 बार चश्मा घुमाता था और फिर चला जाता था। अब इन्होंने वही किया इन लोगों के साथ, सही किया बिल्कुल। उनकी साइड की स्टोरी है, हमारे साइड की स्टोरी पीआर कैसे बता रहा है? वो आलिया भट्ट का काम बहुत ही सुपर्ब था, अरे उन्होंने ये किया, अरे वो उनकी ब्रह्मास्त्र आ रही है, मतलब उनकी अपनी कहानी है। वो आलिया आई विल टेल यू आलिया भट्ट के बारे में क्या बोला। आलिया भट्ट इज द क्वीन ऑफ सिल्वर स्क्रीन, सक्सेस की महारानी है वो। क्यों? गंगूबाई काठियावाड़ी आज तक की सबसे बड़ी हिट हो गई। कितना कमाया? 145 करोड़। बनी कितने में? 150 करोड़। लॉस कितना है? 5 करोड़ का। क्वीन ऑफ बॉक्स ऑफिस। लॉस देने वाला भी क्वीन ऑफ बॉक्स ऑफिस बन रहा है। कितनी मूवीज उनके झोली में बैठी हुई हैं। दिस इज हाउ दे स्टार्ट। That is exactly the point. अगर इनकी फिल्में फ्लॉप होगी, फिल्म इतने मिल कैसे रही? इतनी फिल्में मिल, ये अपने हाथ में मार रहे हैं। Don't just ignore that fact. अभी शादी हुई आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की, how much media coverage has been given? What are we talking about? Ecosystem, right? तो इतना सारा मीडिया कवरेज कैसे है? उनको कैसे लगता है मीडिया? मैं I'm talking media that I'm part of. I mean, how are we so confident कि हम दिखाएंगे और लोग देखेंगे? Sir, for me, that wedding was also a part of the PR Brahmastra. It doesn't look like a wedding to me at all. No, that's not the question. I'm saying a general media I'm talking about. Media के लिए they've turned the Alia Ranveer wedding as an event. Now I want to know
हाउ आर वी सो कॉन्फिडेंट दैट हम आलिया दिखाएंगे, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लोग देखेंगे, और लोग देख रहे हैं, और हमको पैसे भी मिल रहे हैं, इंटरनेट पे भी मिल रहे हैं। अब मुझे लगता है VR इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसने वो कैरी नहीं किया, हमारे अलावा सब ने कैरी किया। Why? ये सर, ये वाली लड़ाई जो है ना बॉलीवुड की, मैं सुशांत को तो नहीं कहूंगी, सुशांत इज जस्ट अ सोर्स, बट बॉलीवुड से जो हमारी लड़ाई है ना, जो वो दिखाते हैं और जो हम इतना आंखें बंद करके देखे हैं इतने ज्यादा, वो लड़ाई हमारी अपनी पर्सनल है। आप किसी को पुश नहीं कर पाएंगे, यहाँ कितने लोगों को आप रोज रात दिन रात समझा नहीं पाएंगे। ये आपकी अपनी पर्सनल लड़ाई, अगर आप इसे मानेंगे तो ही आप जीत पाओगे। आपको समझ में आना चाहिए कि यह लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों के लिए है, आपके घर में उन सभी लोगों के लिए है जो वो दिखा रहे हैं और उससे वो इन्फ्लुएंस होकर आगे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है, सुशांत का नाम ले लेके उसको मत लड़िए प्लीज। अब ये लड़ाई आपकी पर्सनल है। Okay. Okay. Yes, sir. Thank you. Anything else? Thanks a lot. So that's about it. I think we will not stretch this session any longer. This was about the return of poetic justice. Once again, there has been something that tells you that जो आप होते हैं आप वही पाते हैं। आज अजय देवगन के एक ट्वीट ने उनकी इतनी सारी ट्रोलिंग करा दी, लेकिन उनके फेवर में खड़े होने वाला एक भी शख्स नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सिखाया कि अगर किसी को दिक्कत है तो छोड़ दो, मत खड़े हो। अगर अजय देवगन उस दिन खड़े हो गए होते, आज पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होती। लेकिन ये बात अजय देवगन को उस दिन समझ में नहीं आई, शायद आज समझ में आई होगी जब कर्नाटक की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा साउथ इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री और बॉलीवुड, ये तीनों उनके पीछे पलट गए। उनके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है, एक भी शख्स नहीं। That's all that I have. Thank you so much for watching. Please do share the video, like the video, and also come in big numbers, because if you come, I feel encouraged. I feel that whatever I am trying to work out, I work for you on this show whole day, and then I come with a comprehensive narration so that you like it, you get a perspective. When you come in big numbers, I feel little more excited. So on that note, take care, stay safe, come back tomorrow. We'll be talking about part 2 of Ajay Devgan's tweet. What is the secret behind Ajay Devgan's tweet according to me? So this is how I thought it would happen. It would have happened, and for that you will have to wait till tomorrow to know exactly what is my perspective about why Ajay Devgan sent out that tweet about Hindi. Thanks a lot. Stay connected. Stay safe.